Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here are students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Grammar English 2 third semester, and I'm gonna tell you about the very important topic is significance of writing skills. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अब मेरे चैनल पे लिटरेचर के वीडियोस के साथ साथ डेली इंग्लिश वीडियोस भी आपको मिला करेंगे, जिससे आप डेली इंग्लिश सीखा करेंगे शॉर्ट्स वीडियोस में। शॉर्ट्स वीडियोस में आप डेली इंग्लिश सीखा करेंगे। आप इंग्लिश सीखने के लिए वो शॉर्ट वीडियोस मेरे चैनल पे जाकर देखें, वॉच करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और किसी वर्ड्स का मीनिंग या किसी वर्ड की इंग्लिश पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट notification of my new videos, and वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Zenny Study Instruments, Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. Significance of writing on speaking. The written language has nowadays an important and educational function. written language जो है वो आज के दौर में एक important और educational function है, and its status has a high social prestige. और इसका जो status है वो बहुत high social prestige पर मुश्तमिल है। For a long time, written language was seen to be an imperfect substitute for spoken language. और बहुत अरसे तक written language जो थी वो imperfect substitute थी spoken language के लिए। This attitude is found even Dr. Saussure 1916. और ये जो attitude था वो तलाश किया डॉक्टर सॉसोर ने 1916 में। The situation changed entire World War II when linguists such as Pilgrim 1951 and Barry 1928 started to research written language. He devoted over 50 years of his life to research on writing language. और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल इस पर वक़्फ़ किए writing language पर सर्च करने के लिए। Writing is perceived as a linguistic skill which is taught mainly at elementary school and achieved through the mastering of grammatical and spelling rules. Writing perceived linguistic skills है जो हम आम तौर पर elementary school से सीखना शुरू करते हैं, और achieved जब इसे करते हैं वो mastering of grammatical and spelling rules के स्केल पे आके करते हैं। Moreover, as Trova Research 2003 by 2004 105 shows for teachers at elementary and secondary schools of the 4 basic communication skills 94% and listening 71%, while reading 62% and writing 49% are considered less important. बेसिक्स राइटिंग ऑन स्पीकिंग जो है वो 4 है। कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें 94% है, लिसनिंग 71% है, रीडिंग 62% है और राइटिंग 49 जो कि लेस इम्पोर्टेंट कंसीडर की जाती है। बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग इज एसेंशियल, इट ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस. First of all, express one's personality. Second, faster communication. Third, well-thinking skills. Fourth, make logical and persuasive arguments. Fifth, provide and receive feedback. 2 theories of the relationship between speech and writing are examined. 2 theories थी ये speech और writing relationship के दरमियान। 1 theory holds that writing is restricted to a one-way relationship with speech. First theory जो थी वो writing को restricted करती है स्पीच के साथ वन वे रिलेशनशिप में। अ यूनिडायरेक्शनल इन्फ्लुएंस फ्रॉम स्पीच एंड इज सिंपली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, और ये सादा तौर पर स्पीच की रिप्रेजेंटेशन है। राइटिंग टीच कमेंटमेंट। राइटिंग कमेंटमेंट करवाती है व्हेन वी डिसाइड टू राइट अ बुक। जब हम डिसाइड करते हैं एक बुक लिखना, अ शॉर्ट स्टोरी और इवन अ ब्लॉग पोस्ट, चाहे वो एक शॉर्ट स्टोरी हो या ब्लॉग पोस्ट हो, वी आर मेकिंग अ कमेंटमेंट। हम सबसे पहले एक कमेंटमेंट बनाते हैं। राइटिंग अलाउज अस टू डेवलप आवर क्राफ्ट, और ये अलाउ करती है, राइटिंग अलाउ करती है हमारी क्राफ्ट को डेवलप करने में। द मोर वी राइट द बेटर वी गेट।
और हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उससे ज़्यादा हमें बेहतर मिलेगा। यूजिंग द करेक्ट ग्रामर व्हेन यू राइट और स्पीक, जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हमें चाहिए कि हम करेक्ट ग्रामर यूज़ करें। इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग से अवॉइड करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड टू हेल्प द अदर पर्सन अंडरस्टैंड यू ईजीली, और दूसरे लोगों की मदद करें आसानी के साथ समझने में। इफ़ योर इंग्लिश इज़ टू फुल ऑफ मिस्टेक्स यू विल स्लो डाउन कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल मिस्टेक्स के साथ बड़ी पड़ी है तो आप थोड़ा स्लो कम्युनिकेशन करें, कन्वर्सेशन करें। एंड फाइंड इट हार्डर टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ एंड थॉट्स क्लियरली एंड कॉन्सियसली, और ये फाइंड करें कि ये मुश्किल है एक्सप्रेस करना आपको अपने आइडियाज़ और थॉट क्लियरली और कॉन्सियसली। It is important to be able to construct grammatically correct sentences because it makes a huge difference in speaking and writing। और ये बहुत important है ग्रामेटिकली तौर पर करेक्ट सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इसकी राइटिंग में और इसकी स्पीकिंग में। द फाइंडिंग कन्फर्म द स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन सेकेंड लैंग्वेज राइटिंग। अगर हम ये तलाश करें कि अगर जो लोग इंटरेस्टिंग है वो सेकेंड लैंग्वेज में, हाउ एवर दे लेक प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इन फॉर्मल राइटिंग, तो फॉर्मल राइटिंग में इनकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस में बहुत कमी है। देयर फॉर टीचर्स ड्यूरिंग टू डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मल राइटिंग स्किल्स, तो इसीलिए टीचर को फॉर्मल राइटिंग स्किल्स के दौरान तरक्की करनी चाहिए। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।